Hallelujah. Lord Jesus of Nazareth, we bless you, we praise you. Hallelujah. We glorify you. Lord, we glorify you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Worthy, worthy, worthy is your name, Lord. We lift up your worthy name. We lift up your holy name. Jesus of Nazareth, King of glory. We lift up your worthy name. Hallelujah. 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 Lord, we congregate to praise you and glorify you. We come together to worship you, Lord. Hallelujah. Lord, we bless you, we bless you, we bless you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Lord Jesus, we bless you. King of glory, we bless you. Hallelujah. Lord Jesus, we magnify your name. We magnify your name. We magnify your name. Magnify your name. Magnify your name. Magnify your name. Lord Jesus, we magnify your name. We magnify your name. We magnify your name. Lord, we magnify you. We glorify you. Hallelujah. 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 Lord, we magnify you. Magnify you. Magnify you. Lord, we praise you. Praise you. Praise you. Hallelujah. Lord, we praise you. Hallelujah. Hallelujah. सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राग। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राग। पक्षी भी करते तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से याचना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया याचना करूं। तेरी आराधना करूं। तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया याचना करूं। तेरी आराधना करूं। Precious Father, Avinu Malachinu, Avon Dwash Mayo, in the blessed name of Yahusha HaMashiach, the King of Glory, through your blessed Ruach HaKadosh. Father, we thank you for the privilege that we have to access your throne of grace and mercy. Thank you that blood of the Lamb has created a new and a living way. A path has been created by the precious blood of the Lamb. And this is not the way of religion. This is new and a living way, as your word says. For there is a new and a living way that the blood has paved,
that we can now come into the blessed, glorious, sacred, holy presence of the Most High God. And the spirit of adoption, the spirit of sonship that dwells in us, calls him Abba Father. Hallelujah. We cry and call him Abba Father. Hallelujah. The creator of the universe, the greatest I am, whose name is Hayya Asher Hayya. Hallelujah. He said unto Moses, Hayya Asher Hayya. Hayya Asher Hayya. He said, Ego eimi, I am that I am. Lord, we bless your name. We praise your name. Hayya Asher Hayya. Hayya Asher Hayya. Hayya Asher Hayya. I declare your kingship, your sovereignty. I declare your lordship, your majesty. I declare your glory, your splendor. I declare your domain. I unleash your power. And Lord, we bow the knees of our heart now in that glorious name, which is name above every other name. And Father, through that precious blood, we now access your glorious presence. Thank you for your presence. Thank you that you haven't lifted up your presence from the earth. Thank you that your presence is here. Thank you, Father, that we can enter into your presence. Lord, that we can make a deliberate choice every day to dwell under your presence, to cherish your presence above any other material thing in the world, above any other thing in this world. We cherish your presence. Hallelujah. And Lord, we chase your presence. We run after your presence, Lord God. Our heart pursues your presence, and we delight to dwell under the shade of your glorious presence, King of glory. May you now unleash your presence to every listener that is under the voice of your servant. For verily this is not the voice of a man. Let this be your voice, Lord. Hallelujah. Then I heard the voice as of the voice of many waters. Hallelujah. Tumultuous voice. Hallelujah. Yet with great divine order and serenity, like the voice of a trump, resounding and resonating every little fiber in this universe. Hallelujah. Lord Jesus, we pray for that glorious presence, that awesome presence, to captivate our being in the mighty name of Jesus of Nazareth, to capture all the intense and deep desires that lurk inside recesses of a persona. May you capture them, every intent, every desire, every hidden motive, every agenda. Let there be no agenda but one agenda, that is your presence, Lord. Hallelujah. That is your presence. So Lord, I pray, unleash your presence. Make your people hungry and desperate for your presence. Lord, I pray, may they disdain the mundane. May they hate the superfluity. May they hate mediocrity, I pray, Father. And may they yearn and long, and may they strive for your real, glorious, rich presence that transforms us on the inside. Hallelujah. Your presence transfigures us into the express image of your Son, the Lord Jesus Christ. Continue to mold us and make us like Jesus. Hallelujah. Your servant says, my beloved children, for you I have the travailing pains till Christ be formed in you. Thank you for forging the image of Jesus in us. Lord, I pray, let there be revolution of your righteousness, holiness and purity in the earth, Lord. Hallelujah. Let your spirit move. Let your spirit move like never before. Lord, we heard of the ancient days when your spirit moved in might and power, and great signs and wonders and mighty things happened, Lord. Let the spirit move in our days, in our generation, in our time, Father. Let every plan, let every vicious conspiracy
of the enemy against the earth and its inhabitants. For the forces of darkness, those globalists, those occultic people, those Luciferians and Illuminatis, they who control the wealth of the world, the corrupt system, the political system, the fallen, depraved system of the world, they want to hijack your world, O God. But the earth belongs to the Lord and the fullness thereof. The earth belongs to Yahweh. The earth belongs to Yahuwah. Hallelujah. You are the possessor. You are the creator of every handiwork of your hand. Hallelujah. धरती और अंबर शाहकार तेरे, हम भी तो हैं दिलदार तेरे। तू मीठा है, तू मीठा है, तू मीठा है, यीशु मीठा है। तू सुंदर है, तू सुंदर है, तू सुंदर है, यीशु सुंदर है। हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड वी ब्लेस यू। चाहे किसी की ना हो हलाकत, तौबा की नौबत तक लाता। चाहे किसी की ना हो हलाकत, तौबा की नौबत तक लाता। जो ईमान यस्सु पर लाता, अबदी जीवन मुफ्त में पाता। जो ईमान यस्सु पर लाता, अबदी जीवन मुफ्त में पाता। मेरी जान का लंगर है, लंगर है, वो मेरी जान का लंगर है, लंगर है। बदलता सबकी सीरत है, सीरत है। सुंदर मेरा यीशु सुंदर है, सुंदर। सब गाएं। सुंदर मेरा यीशु सुंदर है, सुंदर है। लहू में उसके कुदरत है, कुदरत है। कैसी उसकी अजमत है, अजमत है। सुंदर मेरा यीशु सुंदर है, सुंदर है। चाहने वालों की हड्डियों की खुद खालिक रख वाली करे। चाहने वालों की हड्डियों की खुद खालिक रखवाली करे। जो डरते अपने शाफी से, उनको अपनी रूह से भरे। जो डरते यस्सु राजा से, उनको अपनी रूह से भरे। जो डरते यस्सु राजा से, उनको अपनी रूह से भरे। साथ है वो फिर क्या डर है, क्या डर है। साथ है वो फिर क्या डर है, क्या डर है। बदलता सबकी सीरत है, सीरत है। सुंदर मेरा यीशु सुंदर है, सुंदर है। सुंदर 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 यीशु है। सुंदर 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 यीशु है। Lord Jesus, we bless you. You're so beautiful. You're beyond description. But Lord, because you loved us, and in order to love fallen creatures like us,
who were worms in the pit, Lord, you had to come down. This was literally a sewage. Even sewage is nothing in comparison. You spurned your heavenly glory and you put on humanity and you came upon the earth. And in order to love us, you had to pay the price of redemption. Hallelujah. And in order to pay the price of redemption, you had to lose all your beauty and comeliness. For your visage was marred beyond recognition. You did not please to human eyes. For you were just like a piece of flesh hanging on the cross. You were so mutilated, bruised, crushed, beyond recognition, that they who looked at you, they mocked at you. You did it for me, Lord. My sins crushed you. My iniquity made you die that horrific death on the cross of Calvary. My iniquity made you lose your splendor, made you lose your comeliness and beauty and your glory, and your visage was marred beyond one can even recognize whether the one hanging on the cross is a human being or an animal. Thank you, Yehoshua HaMashiach. तेरे जैसा प्रेम हमसे किसी ने नहीं किया. हालेलुया. तेरा प्यार महान है जो तूने हमसे किया है. तेरा प्यार कोई मज़हब नहीं है. तेरा प्यार धर्म नहीं है. तेरा प्यार धर्म परिवर्तन नहीं है. तेरा प्यार तेरी खौफनाक मौत का मंजर है और तेरे जलाली लहू का अर्घ किनाई उंडेला जाना है जो तूने खुदावंद हमें बचाने के लिए किया. हम तेरे शुक्रगुजार हैं. दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए. गाइए मेरे साथ. अगर आप शुक्रगुजार हैं यीशु मसीह की तो गाइए. दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए. नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए. यीशु यीशु गाइए. यीशु यीशु मुर्दे तू ही जिलाए प्यार से बोले. मुर्दे तू ही जिलाए यीशु प्यार से बोले. लंगड़े तू ही चलाए आंखें बंद खोले. लंगड़े तू ही चलाए आंखें बंद खोले. दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए. नजरें लेकर मैं आया हूँ अपने खुदा के लिए. गाइए उसका मीठा नाम. यीशु 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 यीशु
यीशु यीशु यीशु. Father, as we meditate on your word, shed light on the inside of us. Illumine our hearts. Open our ears. Make us humble, Lord. Remove all arrogance, all forms of pride and haughtiness and superfluity of naughtiness, so that with great meekness we receive your word, the grafted word of God, which is able to save our souls. We praise you, Father, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. सबको जय यीशु मसीह की. हालेलुया. माफ़ कीजिएगा, कई लोग, बहुत सारे लोग संग में जुड़ते हैं यूएस से, कैरेबियन आइलैंड से, कनाडा से और फार ईस्टर्न कंट्री से, जो हिंदी नहीं जानते, तो मुझे थोड़ा इंग्लिश भी बोलना पड़ता है. सो काइंडली फॉरगिव मी. जब हमारी यूट्यूब पे हमारे सब्सक्राइबर 1000 हो जाएंगे, so I'll be doing live on YouTube one message straight into English and maybe couple messages, one in Hindi and Punjabi. Hallelujah. Let me draw your attention to the word of the Lord. परमेश्वर के वचन को हम खोलें और ज़बूर नंबर 24 निकालें. ज़बूर 24 अपनी बाइबल खोलिए. 24 ज़बूर 24 निकालिए. हालेलुया. परमेश्वर के जीवित वचन में से हम अद्भुत बातें आज की शाम सीखेंगे. ज़बूर 24 में से 24 ज़बूर निकालिए, साम 24, और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ वचन उसके वर्स नंबर 1 से. द अर्थ इज़ द लॉर्ड्स एंड द फुलनेस देयर ऑफ, द वर्ल्ड एंड दे दैट ड्वेल देयर इन. हालेलुया. पृथ्वी यहोवा की है और पृथ्वी की सारी भरपूरी, और फिर आगे लिखा है जगत की, संसार की सारी भरपूरी यहोवा की है, और वो जो पृथ्वी पर रहते हैं वो भी यहोवा के हैं. हालेलुया. राजा दाऊद इस भजन को लिख रहा है, 24 भजन को, और मैं आज आपको बताऊंगा क्यों ये भजन बहुत ही अद्भुत है और इसकी बैकग्राउंड क्या है, कौन से बैकड्रॉप पे ये भजन लिखा जा रहा है. पहले वचन में राजा दाऊद यहोवा परमेश्वर को और यहोवा यीशु मसीह को, राजा दाऊद इस भजन में दो यहोवा को संबोधित कर रहा है. मैं आपको बताऊं, पुराने नियम में बाइनरी प्रिंसिपल है यहोवा का, यहोवा पिता और यहोवा पिता का पुत्र. हालेलुया. यहोवा परमेश्वर पिता, यहोवा परमेश्वर पुत्र, दोनों अनंत हैं, दोनों अगोचर हैं, दोनों अजन्मा हैं, दोनों हाइया आशर हाइया हैं. मैं जो हूँ सो हूँ, सेल्फ एग्जिस्टेंट हैं. दोनों क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स हैं, सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के तारणहारे, सृष्टि के पालनहारे हैं. हालेलुया. तो राजा दाऊद इस भजन में शुरुआत करता है कि यहोवा परमेश्वर ब्रह्मांड का रचिता है, यहोवा पिता, यहोवा यीशु मसीह संसार का रचिता है. हालेलुया. और जो कुछ जगत में है, जगत की सारी मामूरी, पृथ्वी के रहने वाले सभी लोग, पृथ्वी के अलग अलग कुल, गोत्र, भाषा, राष्ट्र, अलग अलग देश, सभ्यता, संस्कृति के लोग, सभी यहोवा की मिरास हैं. हालेलुया. दे ऑल बिलोंग टू याह. वो सब यहोवा के हैं. तो पहले वचन में राजा दाऊद बता रहा है कि यहोवा पिता और यहोवा पुत्र क्रिएटर हैं, रचिता हैं, ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं और उसके मालिक हैं. ये ब्रह्मांड यहोवा का है. हालेलुया. जो ऑक्सीजन आप ब्रीथ कर रहे हैं ये यहोवा की है. जिस पृथ्वी पे हम चल रहे हैं ये यहोवा की है. जो आकाश मंडल को तंबू की तरह ताना गया हमारे ऊपर, वो यहोवा का है. ये नदियाँ, झरने, समुद्रों के विशाल पानी और विराट पर्वत, ये हरियाली, वृक्ष, फल, पौधे, सब चराचर और अचराचर संसार, दृश्य और अदृश्य संसार,
सभी हमारे परमेश्वर यहोवा ने बनाया है, वो रचिता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने अपना श्वास फूका है और ब्रह्मांड को रच दिया है। हालेलुया। उसने अपना वचन, अपना मुंह खोला और वचन बोला और ब्रह्मांड को रच दिया है। तो पहले वचन में राजा दाऊद बताता है वो सृष्टि का रचिता है, सृष्टि का क्रिएटर एंड पोजेसर ऑफ द यूनिवर्स। और दूसरे वचन से अगर जब हम पढ़ते हैं तो दूसरे वचन से राजा दाऊद क्या लिखता है? फॉर ही हैथ फाउंडेड इट अपॉन द सीज एंड एस्टैब्लिश्ड इट अपॉन द फ्लड्स। ये प्राइमोडियल वाटर्स की बात हो रही है, प्राइमोडियल फ्लड्स, प्राइमोडियल दुनिया की बात हो रही है। पानियों में से उसने निकाल के पृथ्वी को स्थिर किया है यहोवा परमेश्वर ने। हालेलुया। इनिशियली द क्रिएटेड अर्थ वाज ऑल वाटर, बट ऑन द थर्ड डे ऑफ द क्रिएशन गॉड लेड द फाउंडेशंस ऑफ द अर्थ। अय्यूब 38 का 4 वचन पढ़िएगा। यहोवा ने इसकी फाउंडेशन डाली, एंड ही फाउंडेड इट अबव रादर देन अपॉन, above the waters. Hallelujah. He hath founded it upon the seas and established it upon the floods. तीसरा वचन में देखिए कितनी अद्भुत बात लिखी है। तीसरे वचन, दूसरे वचन से लेके 6 वचन तक जो थीम है, जो यहाँ पे राजा दाऊद परमेश्वर का दास यहोवा के विषय में लिखता है। पहले वचन में लिखता है वो सृष्टा है, क्रिएटर है। दूसरे वचन से वो बताता है यहोवा पवित्र परमेश्वर है, अति पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। तीसरे वचन में लिखा, हु शैल असेंड इनटू द हिल ऑफ द लॉर्ड एंड हु शैल स्टैंड इन हिज होली प्लेस। कौन यहोवा के पर्वत पे चढ़ेगा और कौन उसके पवित्र स्थान में, उसके तंबू में कौन खड़ा रहेगा। हालेलुया। हु शैल असेंड। अगर हम इफिसियों की पत्री पढ़ें तो वहाँ वचन में एक सवाल किया गया है। प्रेरित पौलुस सवाल करता है जो पुराने नियम से नबियों का थीम लिया गया है, हु हैज़ असेंडेड इनटू हेवन। स्वर्ग में कौन असेंड किया? पृथ्वी से स्वर्ग में कोई नहीं चढ़ा सिवाय प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। और वचन में क्या कहता राजा दाऊद? वो जो असेंड किया यहोवा के सिंहासन तक चढ़ा, वो कहाँ गया? नीचे भी गया। इब्राहिम की एक बहुत ही हेरेटिकल और झूठी शिक्षा है जिसे बहुत से लोग प्रीच किया है अमेरिका में, बहुत फेमस प्रचारकों ने प्रीच किया है। जो शिक्षा ये है कि यीशु मसीह नरक में गया और कुछ तो ये नरक में दुख भोगा। बहुत फेमस प्रीचर हैं अमेरिका के जिनको आप टीवी पे, गॉड टीवी पे, TVN पे देखते हैं, उन लोगों की प्रीचिंग है ये। और ये बिल्कुल ही झूठी शिक्षा है, ना केवल झूठी है बल्कि शैतानी है। यीशु मसीह नरक में नहीं गया, यीशु मसीह को नरक में जाने की आवश्यकता नहीं थी। और एक फेमस टीवी एवेंजलिस्ट हैं जिन्होंने ये भी कहा कि यीशु मसीह नरक में गया, उसने दुख भी भोगा और यीशु मसीह का नया जन्म हुआ नरक में जाके। ये सब हेरेटिकल टीचिंग है, फॉल्स टीचिंग्स हैं। जो पुरानी, मैंने आपको 7 झूठी शिक्षाओं के ऊपर एक बार 3 घंटे की शिक्षा दी थी, जिसे डिडास्कलिया डायमोनियन, जिसे कहा गया है दुष्ट आत्माओं की शिक्षा, द डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस। बदरुओं की तालीम वो देंगे, संत पौलुस तीमुथियुस को पत्री लिखता है। ये वो शिक्षा है। जीसस वेंट इनटू द बूजम ऑफ इब्राहिम। यीशु मसीह केवल इब्राहिम की गोद में गया। हालेलुया। यीशु मसीह को पताल में जाके दुख भोगने की ज़रूरत नहीं, यीशु मसीह ने क्रूस पे दुख भोग लिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा, इट इज़ फिनिश्ड, फुल पेमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड, देयर इज़ नो मोर सफरिंग फॉर जीसस। और यीशु मसीह जब इब्राहिम की बुज़म में गया, मैं आपको ग्रीक टेक्स्ट से किसी समय इसकी टीचिंग दूंगा पूरी, कि ग्रीक टेक्स्ट क्या बताता है, हिब्रू टेक्स्ट क्या बताता है ओरिजिनल में। हालेलुया। कि यीशु मसीह ने पताल में, नरक में जाके विजय पाई। यीशु मसीह ने, भाई और बहनों, नरक में कोई विजय शेष नहीं रह गई थी, कोई ऐसी विजय रह नहीं गई थी जो यीशु मसीह को हासिल करनी थी, जो उसने क्रूस पे नहीं हासिल की।
उसने क्रूस पे उसका सर कुचला और उसने क्रूस पे उसकी एड़ी को डसा, और उसकी एड़ी में आज भी कील का निशान है, और उसका सर उसने कुचला है। शैतान का सर कुचला गया है। आपको मालूम, प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय से 12 अध्याय पढ़िए, शैतान का कुचला हुआ सर फिर ठीक हो जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी एड़ी से उसके सर को कुचला है। तो ये असेंशन जो यहाँ पे तीसरे वचन से ज़बूर मस्यानिक हो जाता है। मस्यानिक ज़बूर वो हैं जिनमें राजा दाऊद पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा और पवित्र आत्मा के प्रकाश के द्वारा यीशु मसीह के पैदा होने से 750 साल पहले, बल्कि दाऊद के समय ये 1000 ईयर है, 1000 साल पहले यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु, यीशु मसीह के जीवन के विषय में, यीशु मसीह क्रूस पे कैसे दुख भोगेगा, क्या क्या बोलेगा, कई भविष्यवाणियाँ राजा दाऊद पवित्र आत्मा के द्वारा करता है। वो कहता, हु शैल असेंड इनटू द हिल ऑफ द लॉर्ड, कौन यहोवा के पहाड़ पे चढ़ेगा, कौन उसके पवित्र तंबू में खड़ा रहेगा। और फिर क्या लिखा है, ही दैट हैथ क्लीन हैंड्स, हालेलुया। कौन, जिसके हाथ क्या हैं, ही दैट हैथ क्लीन हैंड्स एंड अ प्योर हार्ट एंड हैथ नॉट लिफ्टेड अप हिज सोल अनटू वैनिटी नॉर स्वर्न डिसीटफुली। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जूइश कोलोकियलिज्म है जिसके अंदर बहुत गहरी बातें छिपी हैं। वर्स नंबर 4 में, हु हैथ क्लीन हैंड्स, जिसके हाथ शुद्ध हैं। एक ही व्यक्ति इस पृथ्वी पे आया जिसके हाथ शुद्ध हैं, और वो है यीशु मसीह, और उसके उन्हीं शुद्ध हाथों में कील के निशान हैं। हालेलुया। वो अपने शागिर्दों को अपने हाथों में कील के निशान, स्कार दिखाता है, जिसे रोमन कैथोलिक लोग स्टिग्माटा बोलते हैं। अपने कीलों के घाव दिखाता है। हालेलुया। एंड हैज़ ए प्योर हार्ट। इस पृथ्वी पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो वर्स नंबर 4 की जो क्वालिफिकेशंस हैं इसको पूरा करे। नोबडी वॉज बॉर्न विद अ प्योर हार्ट। यीशु मसीह के विषय में लिखा है, उसको मालूम नहीं था कि पाप क्या है। हम सब पाप के ज्ञान से पैदा हुए हैं, क्योंकि पाप हमारे डीएनए में है। जब हम पैदा ही होते हैं तो पाप की नॉलेज हमारे डीएनए में है, इनबिल्ट आती है। जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के रैम में ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं, वैसे हम पैदा होते हैं पाप में। राजा दाऊद कहता है, इन इनिक्विटी डिड माई मदर कंसीव मी। अवान, इनिक्विटी क्या है, मैंने आपको बताया था। अवान जो हमारे डीएनए में रहता है पाप। अवान हमारी सेकंड नेचर है, नेचर बाय डिफ़ॉल्ट। हमारी ओरिजिनल जो नेचर थी वो पहले आदम के साथ अदन के बाग में मर गई, और उसी आदम से, पहले आदम से हमें सेकंड नेचर मिली है, जिसके विषय में राजा दाऊद बात करता है। सेकंड नेचर है अवान, इनिक्विटी, हमारे जिनोम में, डीएनए में रहने वाला पाप। हालेलुया। और ये पाप क्या करता है, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय के 2 वचन में प्रेरित पौलुस लिखता है, द सिन दैट सो इजली बिसेट्स अस। वो पाप जो हमें बार बार गिराता है, उलझाता है। जब हम अपनी दौड़ दौड़ रहे हैं, प्रेरित पौलुस वहाँ बता रहा है, जब तुम अपनी दौड़ दौड़ रहे हो मसीह में, तुम्हारे पाँव के अंदर, तुम्हारी टांगों में वो चीज़ें अटकती आके, जो हमारे जिनोम में, हमारे डीएनए में है पाप। तो कोई प्योर हार्ट से पैदा नहीं हुआ। अगर आपको मालूम होगा तो मैंने एक दिन आपको बताया था, जब हमारे माता और पिता का मिलाप हुआ, मैं आपको क्लिनिकल रिसर्च बताता हूँ, साइंटिफिक रिसर्च। तो पिता का जो अंश होता है वो माता के एग को पेनिट्रेट करता है, मिलियंस में से एक करता है। उस एग की शेल को ब्रेक करके उसके अंदर चला जाता है। स्पर्मा, जिसे स्पर्माटोलॉजी, स्पर्म जिसे बोलते हैं। 1611 में सबसे पहले इसे नेदरलैंड के एक जेनेटिक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया माइक्रोस्कोप से, 16 सेंचुरी में। तो ये जो ह्यूमन जीनोम होता है, स्पर्म, वो माता के एग के अंदर जब जाता है तो इसके अंदर जो जेनेटिक कोड होता है, इसके आरएनए में जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो एग के
आरएनए डीएनए के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, फिर ये मल्टीप्लाई करता है, म्यूटेट करता है, अपने जैसे सेल बनाने लगता है, और जिसे हम कहते हैं कि अंदर फीटस बनता है माँ की कोख के अंदर, और एम्ब्रियो बनता है, पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, फीटस बनता है। लेकिन आपको मालूम विज्ञान क्या बताता है? जो फर्स्ट सीड मदर की कोख में जाता है और जो मदर का फर्स्ट प्राइमरी एग होता है, वो दोनों आपस में कंग्लोमरेट करते हैं, वो रिप्रोड्यूस कर देते हैं बहुत सारे सेल, वो सेल आगे प्रोड्यूस करने लगते हैं, एम्ब्रियोज बनता है, फीटस बनता है, और माँ की कोख में बच्चे का आकार बनने लगता है। लेकिन वो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो स्पर्म जाता है और जो मदर का ओरिजिनल एग होता है, वो अपने आप में विकसित होने लगते हैं, और विकसित होते होते उसी से ह्यूमन हार्ट बनता है। दिल ओरिजिनल सीड से बनता है हमारा। हालेलुया। इसीलिए मनुष्य के दिल के लिए लड़ाई चल रही है। अंधकार की शक्तियां भी मनुष्य का दिल जीतना चाहती हैं, और यहोवा परमेश्वर मनुष्य का दिल चाहता है। हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा है? यिर्मयाह नबी कहता है, दिल बहुत ही डेस्परेटली विकेड है इंसान का, इसे पाप का असाध्य रोग लगा है। कौन मनुष्य के दिल को जान सकता है? मनुष्य के दिल को और गुर्दों को केवल यहोवा जांचता है। शैतान को नहीं मालूम आपके दिल में क्या है, जब तक आप बोलोगे नहीं। वो वही जानता है जो आप बोलते हैं। सो योर हार्ट इज़ अ वेरी सेक्रेड प्लेस। योर हार्ट इज़ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। योर हार्ट कैरीज the original sperm that your father unleashed into the egg of your mother. Your heart is created out of the original X and Y from your mother and from your father. Your heart has the original contract. It has the original legal document. It has the original genetic code, the original DNA. That is why your heart is very important in the eyes of God. So who has a pure heart? None. Everybody has a fallen, depraved heart. You cannot depend on your heart. बहुत से लोग कहते हैं ना जी, मैं तो अपने दिल की सुनता हूँ। अरे भाई, तेरा दिल ही तो तुझे सबसे ज़्यादा धोखा देता है। जब तक आपके दिल की तख्तियों पे यहोवा परमेश्वर अपने वचन को नहीं लिखता, जब तक आपके दिल का खतना नहीं होता, सर्कमसीजन नहीं होता, योर हार्ट इज़ नॉट डिपेंडेबल। यू मस्ट लीन ऑन द होली स्पिरिट. You must draw your food from the Holy Spirit, not from your heart. But एक है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, Psalm 24 वर्स नंबर 3 से यहाँ पे किसी की बात कर रहा राजा दाऊद। कौन यहोवा के पहाड़ पे चढ़ेगा, कौन उसके तंबू में रहेगा? वो जिसके हाथ शुद्ध हैं, वो जिसका दिल पवित्र है। हालेलुया। और वो जिसने अपनी सोल को वैनिटी की ओर नहीं उठाया। वैनिटी ये जो है, जितनी शैतानी चीज़ों की लोग उपासना करते हैं, शैतानी चीज़ों का पीछा करते हैं, उसे वैनिटी कहा गया है यहाँ पे। इस वर्ड का मीनिंग आइडोलेट्री भी है। जिसने अपनी सोल को वैनिटी की तरफ नहीं उठाया। यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी सोल एब्सोल्युटली प्योर थी। वचन में लिखा है, उसने अपनी आत्मा पिता के हाथ में दी। उसने कहा, पिता, फादर, इनटू योर हैंड डू आई सरेंडर माई स्पिरिट। अपनी आत्मा पिता के हाथ में दी, क्योंकि शैतान यीशु मसीह की आत्मा को टच नहीं कर सकता था। ही वुड हैव पेरिश्ड। द स्पिरिट ऑफ जीसस वॉज सो होली, सो सेक्रेड, सो फुल ऑफ फायर, so full of heavenly glory. Satan could not by any means even touch the spirit of Jesus. So Jesus gave the spirit back to the Father. लेकिन यशाया 53 में लिखा है, उसने अपनी सोल को पोर आउट कर दिया एज एन ऑफरिंग। एक भेंट चढ़ाई जाती थी परमेश्वर को, जिसे जल का अर्घ कहते थे। एक सोने के कलश में पानी भरा जाता था बेतसैदा के पूल से, और उसे यहोवा की जगवेदी के ऊपर उंडेला जाता था उस पानी को। लिबेशन ऑफरिंग उसे बोलते हैं। यीशु मसीह ने अपनी सोल को वो ऑफरिंग करके ऑफर किया, बिकॉज देयर वाज नो गाइल इन द सोल ऑफ जीसस, एब्सोल्युटली नो गाइल इन द सोल ऑफ जीसस। हालेलुया। उसने अपनी सोल को वैनिटी की ओर नहीं उठाया, नॉर स्वोर्न डिसीटफुली। एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी जुबान से डिसीटफुली नहीं बोला, अपनी टंग से कोई डिसीटफुल बात नहीं की,
कोई डिसीटफुल शपथ नहीं खाई। हालेलुया। एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसकी टंग एब्सोल्युटली सेक्रेड, होली एंड प्योर थी। आपको मालूम, जब 120 लोगों को यहोवा परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, तो स्वर्ग से परमेश्वर ने उनको आग की फटती हुई जीभें भेजी। आपको मालूम क्यों? क्योंकि मनुष्य की समस्या उस जीभ है। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने पेयर ऑफ न्यू टंग्स दी। हालेलुया। नई जीभ दी। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को नई जीभों का जोड़ा दिया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को बैप्टिज्म मिला, यीशु मसीह को बैप्टिज्म आग की फटती जीभों के रूप में नहीं मिला, बल्कि एक डव के रूप में। डव का मतलब प्योरिटी, जेंटलनेस, एब्सोल्यूट क्लेननेस, impeccably flawless, absolutely filled with light was Jesus. तो होली स्पिरिट डव के रूप में आके यीशु मसीह के ऊपर सेटल हो गया। हालेलुया। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का ये जो डव थी, ये नूह ने अपनी कश्ती में से भेजी और लौट आई। उससे पहले उसने क्रो को भेजा था, कौए को, वो नहीं लौटा, क्योंकि कौए को, जो रेवन था, उस रेवन को डेड बॉडीज मिल गई होंगी। He may have begun gorging over the dead bodies. He might have found plentiful, delicious food. That's the nature of raven. Raven will fall for all kind of unclean things. So he was having party for a long time. He never returned to the ark. But when he sent the dove came back. आपको मालूम, हमारे देश की संस्कृति में एक दोहा है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पे आवे। डव वापस आई। उसने फिर कुछ दिन बाद डव को भेजा, तो डव अपने मुंह में एक जैतून का पत्ता लेकर आई। हालेलुया। वो ये सिग्नल था, लाइफ इज पल्सेटिंग वन मोर टाइम अपॉन द अर्थ। जीवन पृथ्वी पे फिर अंगड़ाइयाँ ले रहा है। और नूह निकला और उसने जगवेदी बनाई सबसे पहले, और शुद्ध जानवरों की कुर्बानियों की भेंट यहोवा को अर्पण की, और यहोवा ने उन कुर्बानियों को सूंघा और यहोवा परमेश्वर प्रसन्न हुआ। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह के अंदर कोई फ्लॉ नहीं है। तो क्या लिखता है यहाँ पे ज़बूर लिखने वाला? यीशु मसीह के विषय में लिख रहा है, और 5 वचन में लिखा है, ही शैल रिसीव ब्लेसिंग फ्रॉम द लॉर्ड एंड राइचियसनेस फ्रॉम गॉड ऑफ हिज साल्वेशन। हालेलुया। कौन है ब्लेसिंग? किसको मिली है? जीसस को। यीशु मसीह बरकतों का, आशीषों का स्रोत है। यीशु मसीह राइचियसनेस का, धार्मिकता का स्रोत है। दिस इज द जनरेशन ऑफ देम दैट सीक हिम, दैट सीक दाई फेस, ओ जेकब। हालेलुया। एक पीढ़ी जो यहोवा परमेश्वर के चेहरे को ढूंढेगी। हालेलुया। जो उसे ढूंढेगी, यहोवा परमेश्वर की बरकतों को नहीं ढूंढेगी। आज लोग केवल बरकतों को ढूंढते हैं। अगर अभी मैं शुरू कर दूं ना प्रोफेसियों और बरकतों का सिलसिला, कि आपके बैंक अकाउंटों में पैसा आ जाएगा, आपके वीज़े लग जाएंगे, आपको रियल एस्टेट मिल जाएगी, आपको जॉब्स मिल जाएंगी, आपको इंक्रीमेंट मिल जाएंगे, आपकी प्रमोशनें हो जाएंगी, आपको ये मिल जाएगा, आपको बंगलेज मिल जाएगा, आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी। मैं प्रोफेसी करने जा रहा हूँ, हज़ारों लोग यहाँ पे जुड़ जाएंगे अभी। लेकिन ये जनरेशन कौन सी है जो उसका चेहरा ढूंढती है? उसके हाथों की तलाश नहीं करती, उसके चेहरे की तलाश करती है। बहुत सारे लोग केवल परमेश्वर के हाथों की ओर निहारते हैं, हाथों को देखते हैं कि बस ब्लेस मी ब्लेस मी ब्लेस मी। 7 आयत में देखें कितनी अद्भुत बात लिखी है, अब ध्यान से सुनिएगा। 7वें वचन में लिखा, लिफ्ट अप योर हेड्स ओ ई गेट्स एंड बी लिफ्टेड अप ई एवरलास्टिंग डोर्स एंड द किंग ऑफ ग्लोरी शैल कम इन। कौन है ये? जलाल का बादशाह। ज़बूर गाते ना हम। भजन 24 आपको मालूम राजा दाऊद ने कब गाया है? राजा दाऊद जब परमेश्वर के ऐद के संदूक को लेकर आ रहा है। मेरे संग पढ़ें एक वचन जल्दी से, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इससे
शॉर्ट में करूँगा वरना इट विल टेक अनदर 30-40 मिनट्स। मैं छोटा ही करना चाहता हूँ। आप जल्दी से पढ़ें 2 सैमुएल, दूसरे सैमुएल की पुस्तक निकालिए और उसका 6 अध्याय, 2 सैमुएल चैप्टर नंबर 6। यहाँ पढ़ें पहले वचन से। एंड अगेन डेविड गैदर्ड ऑल द चोजन मैन ऑफ इजराइल 30,000 एंड डेविड रोज एंड went with all the people that were with him from Bale of Judah to bring up from thence the ark of God, whose name is called by the name of the Lord of hosts, that dwelleth between the cherubim। असली शब्द है करूबीम। वो सेनाओं का यहोवा जो करूबों के बीच में विराजमान रहता है, उसके ऐद के संदूक को लेने के लिए राजा दाऊद निकल पड़ा। राजा दाऊद भूखा था यहोवा की हजूरी का। राजा दाऊद को जब राजा बना, उसने ये नहीं सोचा कि मैं अपने सेनापतियों को इकट्ठा करके मिलिट्री की स्ट्रैटेजी बनाऊं या अपने इकोनॉमिस्टों को इकट्ठा करूं, हम इकोनॉमिक प्लान बनाएं अपनी कंट्री के लिए, या कोई सोशोलॉजिकल प्रोग्राम बनाएं, या हम अपने इज़राइल के विकास की बातें करें, या हम अपने इज़राइलियों के वेलफेयर के लिए कोई प्लान बनाएं, या हम अपने लोगों को इकट्ठा करके उनसे मिलूं, ग्रीट करूं, या उन्हें कोई लेक्चर डिलीवर करूं। ऐसी कोई भी दिखावे वाली बात राजा दाऊद के दिल में नहीं थी। सब सर्वप्रथम उसके दिल में क्या आया? हम अपने परमेश्वर यहोवा के ऐद के संदूक को लेकर आए, क्योंकि शाऊल के दिनों में वो हमारे मध्य में नहीं था। हमारा परमेश्वर जो करूबों के ऊपर विराजमान है। 30,000 लोगों को इकट्ठा किया उसने, किस लिए? लेट अस ब्रिंग बैक द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपको मालूम वाई द चर्चेज आर फॉलिंग डाउन? क्यों गिर रही हैं कलीसियाएँ? क्यों सेवक गिरते जा रहे हैं पूरे विश्व में? क्यों अपोस्टेसी आ रही है? खाली हो रही हैं चर्चेस दुनिया में, कोई बेदारी नहीं चल रही इस समय। यीशु मसीह की चर्च एक लीन पीरियड से जा रही है, लेकिन चर्च के अंदर एक चर्च है जो ग्रो कर रही है, जो आग से भर रही है, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर रही है। एक चर्च अपोस्टेट होती जा रही है। बहुत से प्रीचर, पास्टर, दे आर फॉलिंग इनटू इमोरालिटी, दे आर फॉलिंग इनटू मैनी काइंड ऑफ परवर्जन्स, दे हैव देयर हार्ट्स ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम गॉड, दे आर परसुइंग मटीरियल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे फॉल्स डॉक्ट्रिन, फॉल्स टीचिंग प्रीच कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये बेदीनी का समय है। इट इज अ टाइम ऑफ ग्रेट फॉलिंग अवे। रीड द स्क्रिप्चर। ग्रेट फॉलिंग अवे, ग्रेट अपोस्टासिस। एपोस्टासिस मैंने आपको बताया, द टीचिंग दैट टेक्स यू अवे फ्रॉम द क्रॉस, teaching that takes you away from the blood of Jesus, teaching that takes you away from righteousness, holiness and purity, teaching that promotes that God is so pleased, He's going to bless you, He's going to prosper you, He's going to shower His blessings upon you. Don't talk about judgment, God is a love God. Don't talk about repentance, God is a love God. Don't judge people based upon their sexual preferences, whether they are lesbian, homosexual. God just loves them, He just wants to embrace them. Preach a gospel that offends none. Don't talk about false doctrine, false teachings. Just talk love. Love will win people. This is the pseudo love gospel. This is not the gospel of Jesus Christ. This is the gospel of perversion. This is the gospel of darkness that people are preaching. ये अंधकार का समय चल रहा है पृथ्वी के ऊपर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं बार बार ये प्रचार इसलिए कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, कोई कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट नहीं हूँ मैं। पवित्र आत्मा मेरे अंदर जोर मारता है। थ्रू द वॉचेस ऑफ नाइट ही टेल्स मी दीज डीप थिंग्स दैट आर कमिंग अपॉन दी अर्थ। पृथ्वी पे बुरे समय आ रहे हैं भाइयों और बहनों। बहुत सारे लोग वंचित हो जाएंगे, जब यीशु मसीह आएगा उठाए नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग मिस कर जाएंगे परमेश्वर के मूव को जो पृथ्वी पे आने वाला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो राजा दाऊद ने क्या किया? उसने प्रेजेंस ऑफ गॉड को ढूंढा। जिन चर्चेस के अंदर, जिन मिनिस्ट्रीज के अंदर प्रेजेंस ऑफ गॉड की केयर नहीं करते लोग, दे वांट टू मेक द साइज ऑफ देयर चर्च बिग न्यूमेरिकली। चर्च लेंथ ब्रेड्थ में फैले, चर्च डेप्थ में ना फैले।
चर्च की लेंथ ब्रेड्थ किलोमीटरों में हो जाए और चर्च की डेप्थ बेशक इंचेस भी ना हो। कई ऐसी चर्चेज़ हैं जो किलोमीटर्स में स्प्रेड की हुई हैं, लेकिन उनकी डेप्थ 1 इंच भी नहीं है। राजा दाऊद परमेश्वर की प्रेजेंस को ढूंढता है। आप क्या ढूंढ रहे हैं? एक सिस्टेमेटिक रिलीजन, सिस्टेमेटिक डिग्निफाइड थियोलॉजिकल ओरिएंटेड डिनोमिनेशनल रिलीजन ढूंढ रहे हैं आप, या प्रेजेंस ऑफ गॉड? किसके पीछे हैं आप? राजा दाऊद जब ऐद के संदूक को लाता है तब ये भजन गा रहा है। ये भजन गाया जाएगा, आपको मालूम कब? ये भविष्यवाणियाँ हैं। भविष्यवाणी क्या है? मैं अभी समय नहीं लूँगा, फिर किसी समय मैं बात करूँगा। साम 24 पढ़ें दोबारा से, 24 ज़बूर में चलें। क्या कहता है राजा दाऊद? लिफ्ट अप ई हेड्स ओ ई गेट्स, बी ई लिफ्टेड अप ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, O ye gates, even lift them up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord of hosts, he is the King of glory. Hallelujah. राजा दाऊद ये ज़बूर लिखता है जब ऐद का संदूक राजा दाऊद की नगरी में आ रहा है, और राजा दाऊद ने खेमा खड़ा किया है ऐद के संदूक को रखने के लिए। राजा दाऊद यहोवा की हजूरी को होस्ट करता है। लोग यहोवा की हजूरी के खोजी नहीं हैं, और उन्हें यहोवा परमेश्वर की हजूरी को होस्ट करना नहीं आता। हालेलुया। बहुत सी मिनिस्ट्रियाँ अपनी एक्सपेंशन ढूंढ रही हैं, अपने पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहती हैं, अपनी आउटरीच को बढ़ाना चाहती हैं, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहती हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहती हैं, अपनी बिल्डिंग्स को और एक्सपेंड करना चाहती हैं, बट दे डोंट केयर फॉर द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड गॉड। परमेश्वर की हजूरी है या नहीं है? राजा दाऊद लिखता है ये ज़बूर, ये जो वचन मैंने आपको पढ़ाया 34 ज़बूर में, उसके 7 वचन से ये मसीहानिक साम हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा भाई और बहनों 1000 साल राज करने के लिए, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, अभी वो बादलों में आएगा, वो सेकंड कमिंग नहीं है, वो दुल्हन के लिए आएगा। 7 साल पृथ्वी पे शैतान का राज्य होगा, उसके बाद मसीह आएगा, हम सब उसके संग आएंगे। वो घोड़े पे बैठ के आएगा, और आपको मालूम ईस्टर्न गेट जो है यरूशलेम का, यरूशलेम के 12 गेट हैं, 12 फाटक हैं। जो ईस्टर्न गेट है, जिस तरफ सूर्य चढ़ता उधर जो फाटक है, उसे मुस्लिम लोगों ने कब्रों से बंद कर दिया, कब्रें बना दी हैं वहाँ पे। उन्हें पता है इस भविष्यवाणी का, ज़बूर 24 की, कि जलाल का बादशाह आएगा और उच्चे करो सिर दरवाजे, उच्चे हो सब दरो। ईस्टर्न गेट से आएगा और वो फाटक बंद है, वो सैकड़ों साल से बंद पड़ा हुआ है, उसके आगे कब्रें हैं। वो ये सोचते हैं कि यीशु मसीह तो याजक है, यीशु मसीह तो खोशर है, कोहन है, तो वो कब्रों को टच नहीं करेगा। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि एक मासिव अर्थक्वेक आएगा और कब्रों का पता भी नहीं लगेगा किधर गई, और वो फाटक तब खुलेगा। वो बंद है फाटक, यरूशलेम के अंदर पूर्वी ईस्टर्न फाटक बंद है। वो फाटक खुलेगा जब प्रभु यीशु मसीह आएगा 1000 साल राज्य करने के लिए। तब उस समय यरूशलेम में लोग होंगे खड़े, औरतें होंगी, पुरुष होंगे। जब राजाओं का राजा, जलाल का बादशाह घोड़े पे सवार होके, हम सब उसके संग होंगे और स्वर्गीय फौजें होंगी संग में, वो यरूशलेम में दाखिल होगा, तब कुछ लोग सवाल करेंगे और कुछ लोग उसका जवाब देंगे। कुछ लोग जानते होंगे ये भविष्यवाणियाँ, वो जवाब देंगे, और कुछ लोग सवाल करेंगे। तो क्या सवाल करेंगे? वो सवाल करेंगे, ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। दूसरा ग्रुप जवाब देगा, लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा
बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजियो, ऊंचे हो सब दरो। ऊंचे करो सिर दरवाजियो, ऊंचे हो सब दरो। जां जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। जां जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, यसू जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, यसू जलाल दा बादशाह है। यसू जलाल दा बादशाह है। Hallelujah. Thank you, Jesus. May the Lord Jesus Christ of Nazareth bless you all. Amen.